अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ टुडे वी स्टडी द चैप्टर नंबर 6 ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सिंध बोर्ड एंड द नेम ऑफ द चैप्टर is the chemical equilibrium. Now what is the definition of chemical equilibrium? Now equilibrium means same, similar, cannot be changed, constant, means reaction having the two type of the reactant and products. These two types are reactant and the products, means the reactant and product both are in equilibrium. It means, what is the definition? It is the reaction or a process in which a forward and the reverse reactions occur at equal rates. At equal rates means time, means same time of the reactant and the product, and this reaction having the properties means the state of balance or the stable situation. The situation always stable and the opposing forces cancel to each other, means the force of reactant and the force of product or any other opposing forces are cancelled to each other, means no changes occurring during the reaction, no changes occurring. And there are the two types of the reaction, reversible reaction and the irreversible reaction. Reversible reaction means a chemical reaction or the chemical reaction which takes place in forwards and backward both directions and never proceed to completion, means it will be continue, and that time will become when it will be in equilibrium, and it is shown in the double arrow, and this arrow shows the forward and the backward reaction, means hydrogen iodide are convert into hydrogen and the iodine. Now we balance this equation. When we apply 2, then it will be balanced. Similarly, in the irreversible, means cannot be reversed. It is only in one direction. It is only proceed from reactant to product, means we can say the reaction in which reactants are completely converted into products and proceeds to completion, and denoted by an arrow or a single arrow. Equation: when zinc react with the sulfuric acid, then reaction will be completely closed, means zinc convert into zinc sulfate and hydrogen gas evolve from it. Now you learn or remember this topic and give me the test of this topic. ठीक बेटा, आपको समझ आया है? आपने इसको सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन जो वर्ड्स उठा के और शुरू में बस आपने ये लिख देना है, द केमिकल रिएक्शन इन विच। मेन बातें निकाल के यूँ रखी हैं कि आपको सहूलत रहे याद करने में। डेफिनेशन में भी आप क्या कहेंगी, इसमें भी आपने यही वर्ड यूज़ करना है, केमिकल रिएक्शन, और हम क्या कहेंगे, आ प्रोसेस इन विच और आ केमिकल रिएक्शन इन विच, दोनों बातें आ जाएंगी। फिर डेफिनेशन में आप ये बातें भी डाल देंगे। स्टेट इसकी क्या होती है, हमेशा ये बैलेंस में रहेगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर मिकदार में बनते रहेंगे, रिएक्शन चलता रहेगा, और क्या है, इसमें कोई भी चेंज अकर नहीं होगा,
हाँ, कोई भी फोर्सेस जो होंगी ये उन सबको ओवरकम कर देगा और अपना काम जारी रखेगा। इसी तरह ये रिएक्शन कितनी किस्म के होते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2 किस्म के होते हैं, रिवर्सेबल है और इर्रिवर्सेबल है। देखिए बेटा, आपको नाम से पता चल रहा है। रिवर्स का मतलब है पीछे को होना। जैसे हम कहते हैं गाड़ी रिवर्स हो रही है, तो मीन्स क्या, पीछे को होना। वो आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, लेकिन बराबर काम चलता रहेगा, आगे पीछे, और ये बैलेंस में ले लेगा खुद को, और बैलेंस होने के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इसे डबल एरो से ज़ाहिर किया जाएगा। इसमें बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप बुक में चैप्टर में देखेंगे तो आप वहाँ से वो इक्वेशन याद कर लीजिएगा। बस ये आपको मैंने एक इक्वेशन लिख के बताई है और इक्वेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल ईजी इक्वेशन है। अब इर्रिवर्सिबल, आपको पता चल रहा है इर लग गया साथ में, मीन्स के वो रिवर्स नहीं होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सिर्फ एक एरो से उसे जाहिर किया जाएगा। और डेफिनेशन में आप क्या कहेंगे? जैसे हमने आपको पहले बताया, द रिएक्शन इन विच और द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोसीड टू बी कंप्लीशन। ये कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपने इसको याद करना है, लिख के देखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन के बाद ये आगे बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब आपको आगे का समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक्स। इसे अच्छे से याद करें, लिख के देखें। यहाँ से आप लेके इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद क्या है, इसको याद करके बार बार लिख के देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। और अगर कमेंट्स कोई रॉन्ग कमेंट्स दे देता है या कोई ऐसे कमेंट देता है जो आउट ऑफ एटिकेट्स हैं, तो नो प्रॉब्लम। दुनिया में बेटा हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, जेलस होने वाले भी लोग पाए जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो उस्ताद को कदर की निगाह से नहीं देखते, तो अपने लिए खुद ही भुगतते हैं। तो आप उसको बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसको छोड़ दें। कोई अगर कमेंट करता है, रॉन्ग कमेंट करता है, उल्टा सीधा कहता है, तो भी नो प्रॉब्लम। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। हमने अपने उन बच्चों के लिए जो बेचारे कहीं भी ट्यूशन पर नहीं जा रहे, सारे सेंटर बंद हैं, उनके लिए ये तरीक़ाकार किया है कि वो यहाँ से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और कम से कम वो अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो आप ये जो हमारा सब्सक्राइब चैनल करने का है, ये आप वो बच्चियाँ जो हमारे पास नहीं पढ़ती हैं, आप उन्हें भी कह सकते हैं, किसी और सिटी के वो उन स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, लड़कों को भी दे सकते हैं और लड़कियों को भी दे सकते हैं। और ये बुक्स वो हैं जो पूरे पाकिस्तान में यही बुक्स चलती हैं, तो आप ये पंजाब तक भी भेज सकते हैं। कोई भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करे और इसको पढ़े, याद करे, और सब्सक्राइब करेंगे तो हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।